কৰিছো। ৰাস্তা ঘাটৰ কথা কওঁ, এই মাহতলী পঞ্চায়ততে 12.5 কিলোমিটাৰ পকী ৰাস্তা ৰাইজ আপোনালোকে পাইছেনে নাই ৰাইজ কওক? মাহতলী ৰাইজে কওক যে 12.5 কিলোমিটাৰ পকী ৰাস্তা পাইছেনে নাই কওক ৰাইজ কওক। 4খন RCC ব্ৰিজ আপোনালোকে মোৰ দিনত পাইছেনে নাই কওক। এই অঞ্চলত কোনো পাক্কা ৰাস্তা নাছিলে, কোনো পকী দলং নাছিলে, কোনো কাঠৰ ব্ৰিজো নাছিলে ৰাইজ। গৰাখহনীয়াৰ কাৰণে মই কাম কৰিছোঁ, যিমানখিনি পাৰোঁ কৰিছোঁ ৰাইজ। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ, মই দীঘলীয়া ভাষণ নিদিওঁ। মই এই নিৰ্বাচন নমিনেশ্যন দিবৰ পৰা গাঁৱে ভূঞে গৈ মই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছোঁ। ৰাইজে বিপুল সঁহাৰি দিছে। এইবাৰ মহাযুদ্ধনত আমাৰ 7টা দল আমি একত্ৰিত হৈছোঁ এই সাম্প্ৰদায়িক বিজেপি চৰকাৰক অসমৰ পৰা উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে। মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ CPI, CPM, AUDF-ৰ আৰু BPF-ৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাই মোক সহযোগ কৰিছে। মই বদৰুদ্দিন ভাইক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, হাগ্ৰামা মহিলাৰ ভাইক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, CPI, CPM-ৰ সকলো নেতৃবৰ্গক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অজিত ভূঞা ডাঙৰীকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সকলো আমি একত্ৰিত হৈছোঁ। সেইকাৰণে ৰাইজ কৈছোঁ যে মই অকল কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট নহয়, মই মহাজোটবন্ধনৰ কেণ্ডিডেট ৰাইজ। সেইকাৰণে নিৰ্বাচনৰ পাছত যিবোৰ উন্নয়নমূলক কাম হ'ব আমি UDF, CPI, CPM, BPF আমি মিলিকেনে কৰিম ৰাইজ, আমি মিলিকেনে কৰিম। এইটোত সন্দেহ নাৰাখিব আপোনালোকে। সকলো আপোনালোকে মোৰ ওচৰত আহিব, মই কোনো ভেদাভেদ নাৰাখোঁ। মই যিমানখিনি পাৰোঁ ৰাইজ আপোনালোকৰ কাম কৰিম। ৰাইজ আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ, এইখিনিতে আমাৰ কেইবাজন বক্তা আছে, তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ জেগালৈ যাব। মই শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ। সকলোকে ধন্যবাদ। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जुड़े कब प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सुष्मिता देव जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। भोट दिबा किसेते, भोट दिबा किसेते, भोट दिबा किसेते, हाथेर छवि देखिया, हाथेर छवि देखिया, हाथेर छवि देखिया। धन्यवाद। অহা 6 এপ্ৰিলত সকলোৱে আল্লাহ, ঈশ্বৰ, সকলো ভগৱানৰ নাম লৈ আপোনালোকে নামাজ পঢ়াৰ সময়টো সকলো সময়ত আমাৰ দলৰ কাৰণে, আমাৰ কাৰণে দোৱা কৰিব ৰাইজ। সেই আপোনালোকক সকলোৱে অহা 6 এপ্ৰিলত যাতে হাতৰ ছবিত ভোট দি আমাৰ কংগ্ৰেছ দলক জয়যুক্ত কৰে, এইখিনি কৈ মোৰ ভাষণ শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া আমাৰ মাজত আমাৰ যোগ্য নেতা, আমাৰ প্ৰাক্তন প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যোগ্য সন্তান এতিয়া আমাৰ মাজত আমাৰ সৌভাগ্য সুদূৰ দিল্লীৰ পৰা আমাৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ ইমৰান প্ৰতাপ গিৰি ডাঙৰীয়া আহিছে। তেখেতে সুন্দৰভাৱে কিয় কংগ্ৰেছক ভোট দিব লাগে আপোনালোকৰ আগত কথাখিনি ক'ব। আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে শুনিব ৰাইজ। আৰু তেখেতে ভাষণ দিয়াৰ আগে আগে এটা খুব জোৰেৰে হাত চাপৰি জনাই তেখেতক অভিনন্দন, আদৰণি জনাব। ধন্যবাদ। मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में, हजारों नहीं बल्कि अगर मैं कहूं कि लाखों की तादाद में बोको में मौजूद बहन नंदिता दास के लिए जो आपकी दीवानगी है। मैं आया तो बड़ा डरा हुआ था, मुझे लगा पता नहीं आप मेरी भाषा समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपका जोश, आपका जज्बा देख करके मैं पूरे हिंदुस्तान में जाके बताऊंगा कि बोको की भीड़ ने असम की हर सभा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सलाम आपकी मौजूदगी को। जिस तपती दोपहरी में आप मौजूद है, मेरी माएं बहनें यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। नौजवान साथी तो ऐसे इकट्ठा है जैसे लग रहा है पूरे असम का नौजवान यहीं आके इकट्ठा हो गया हो। हमारे बड़े भाई गौरव साहब, गौरव गोगोई साहब, रकीबुल हसन साहब और आज की कैंडिडेट हमारी नंदिता जी, बहन नंदिता। जब मैं दिल्ली से आ रहा था तो मुझसे प्रियंका दीदी ने कहा कि पूरे असम में जाना या ना जाना, लेकिन बोको जाकर के नंदिता दीदी के लिए लोगों से अपील जरूर करना, उनके लिए वोट जरूर मांगना। आप धूप में खड़े हैं, तपती दोपहरी में,
हम लोग जब हेलीकॉप्टर से लैंड कर रहे थे तो पूरा सड़कें जाम हैं, पूरा शहर जाम है। मैं आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूं। हम यहाँ साए में बैठे हैं, हमारे ऊपर साया है, लेकिन हम फिर भी गर्मी महसूस कर रहे हैं। लेकिन आप तो धूप में खड़े हैं। आपकी मोहब्बत को सलाम। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। महाजोत के तमाम झंडे यहाँ लहरा रहे हैं हर पार्टी के। मैं दिल्ली से यानी कि 2000 किलोमीटर दूर से आपके बीच में अपना दामन फैला के ये कहने आया हूँ बोको वालों, असम वालों, कि ये इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन है। ये इलेक्शन सिर्फ एमएलए चुनने का इलेक्शन नहीं है। दिल्ली में बैठी हुई कुछ नफरत वाली ताकतें ये सोचती हैं कि असम उनकी जागीर है, उन्होंने असम को कब्जा कर लिया है। ये इलेक्शन उन्हें ये बताने का इलेक्शन है कि तुम दिल्ली में बैठ करके असम की किस्मत का फैसला नहीं कर सकते। असम की किस्मत का फैसला असम की जनता करेगी, यहाँ के लोग करेंगे। कोई नरेंद्र मोदी, कोई अमित शाह साहब असम की किस्मत का फैसला नहीं करेंगे। असम की अस्मिता का फैसला यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलके करेगा, आदिवासी मिलके करेगा। और आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से लोगों को लेकर के चलती है, एकजुट करके चलती है। 1947 में भारत को अंग्रेजों से छीनने के बाद अपने लहू से, अपने पसीने से सींचने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। इसी मिट्टी में इंदिरा जी ने अपना लहू मिलाया है, इसी मिट्टी में राजीव जी ने अपना लहू मिलाया है, राजीव गांधी जी ने इस मिट्टी को अपने खून से सींचा है कांग्रेस पार्टी ने। और आज चंद सरफिरे दिल्ली की गद्दी पर बैठे हो या असम की गद्दी पर बैठे हो, वो पूछते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अभी पिछले दिनों पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी ने जोर से कहा कि बताओ 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। तभी पीछे बैठे कांग्रेस के एक सांसद ने दूसरे सांसद से कहा मत बचाना, मत बताना, वरना जो बताओगे उसको भी बेच देंगे। इनका काम सिर्फ बेचना है। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, पूरा देश दो लोगों के हाथ में सौंप दिया। और वो दो लोग कौन हैं? अंबानी और अडानी। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह साहब सिर्फ 4 लोग मिलकर के देश चला रहे हैं। राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये हम दो, हमारे दो की सरकार है, तो वो सही कहते हैं। लेकिन असम वालों, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जोश और जज्बा कहीं दिखाई दे रहा है तो वो असम में दिखाई दे रहा है। और भाजपा समझ गई है, भाजपा समझ गई है। इसीलिए पहले और सेकंड फेज के इलेक्शन में किस तरह से आपने देखा, ईवीएम हाईजैक करने की कोशिश की। पहले हैक करने की कोशिश करते थे, अब हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं। बौखला गए हैं। लेकिन उन्हें अब 6 तारीख को जब ईवीएम की कतारों में खड़े होना, पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए, तो इतनी बटन दबाना कांग्रेस की, इतनी बटन दबाना कि उसकी झटका जो है वो पूरे असम में भाजपा को सुनाई पड़े, दिखाई पड़े। मेरे भाई, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये लड़ाई, मैंने कहा ना, छोटी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस बात की लड़ाई है कि दिल्ली में बैठ के, असम में बैठ के कुछ लोग ये तय करेंगे, आपसे कागज मांग के ये कहेंगे कि बताओ तुम भारत के रहने वाले हो या नहीं, तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं। ये सवाल करेंगे। आप मुझे बताओ, आप इस सवाल के खिलाफ में वोट करना है आपको, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार आते ही जो सबसे पहली गारंटी होगी वो ये होगी कि हम CAA यानी कि का जैसे काले कानून को असम में लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। कांग्रेस देश को लेके चलती है। कांग्रेस का मतलब देश है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भारत को तोड़ना, एक दूसरे को अलग करना। कांग्रेस किस तरह से देश को लेके चलती है। आपके बीच में कांग्रेस आकर के मुद्दों पे लड़ रही है। ये कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, यानी कि हाथ का पंजा, हाथ का पंजा। और इसमें कितनी उंगलियां हैं? 5। और कांग्रेस क्या कह रही है कि हम आपको 5 गारंटी दे रहे हैं। 5 गारंटी। कांग्रेस के चुनाव निशान हाथ के पंजे में 5 उंगलियां और 5 गारंटी। नौजवानों,
5 लाख नौकरियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। 5 लाख नौकरियां, 5 लाख नौकरियां तुम्हारा इंतजार कर रही है जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी। और आप जानते हो कि दीदी नंदिता कितनी मजबूत है कांग्रेस पार्टी में, इसलिए जैसे ही सरकार बनेगी और तुम्हारे लिए नौकरी मांगी जाएगी तो तुम्हारे हक के लिए नंदिता दीदी अपनी सरकार से लड़ करके तुम्हारे लिए नौकरी छीन करके लेकर के आएगी। ये लड़ाई नौकरी पाने की है। यहाँ बड़ी तादाद में मेरी माएं, मेरी बहनें बैठी हैं। आप जब 6 तारीख को वोट डालने जाना तो सिर्फ नंदिता जी को एमएलए बनाने के लिए आप नहीं जाओगे, आप इस बात के लिए भी बूथ पर जाना कि कांग्रेस कह रही है कि हर महिला को जो घर में काम करती है उसे 2000 रुपए उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करके हर महीने दिया जाएगा। ये है कांग्रेस की गारंटी, ये है कांग्रेस की गारंटी। मैं 2000 किलोमीटर दूर दिल्ली से आया हूं। पूरे देश की नजरें हैं असम वालों। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, इलाहाबाद का रहने वाला हूं। असम से शुरुआत कर दो भाजपा को हटाने की। आप असम से शुरुआत करो, आने वाले दिनों में हम उत्तर प्रदेश से भी भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे और उसके बाद दिल्ली की गद्दी से भी भाजपा को उखाड़ने का दिन शुरू हो जाएगा। और ये जो कांग्रेस वादा कर रहे हैं इसे झूठा वादा मत समझना, क्योंकि ये राहुल गांधी जी का वादा है, ये प्रियंका गांधी जी का वादा है, ये नरेंद्र मोदी जी जैसे जुमला बोलने वाले का झूठा वादा नहीं है। कांग्रेस वादा पूरा करती है। नरेंद्र मोदी जी क्या क्या बोल रहे हैं, इतना घबरा गए हैं कि पिछले दिनों आप यहाँ आकर के बोले कि चाय खतरे में है, असम की चाय खतरे में है। नहीं नरेंद्र मोदी साहब, असम की चाय खतरे में नहीं है, फर्जी चाय वाला खतरे में है। चाय खतरे में नहीं है, असम को अब खतरे से उबारना है। पिछले 5 साल में असम के साथ जो खिलवाड़ किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उससे असम को निकालना है। जो लोग कहते हैं कि कागज दिखाओगे तब साबित होगा कि तुम हिंदुस्तानी हो, तुम भारतीय हो, तुम असमी हो, उन्हें बताना पड़ेगा कि जो कागज तुमने मांगा है वो कागज मेरे पास नहीं, मेरे पास तो बस कुछ आंसू हैं, तुम्हें अश्कों का एहसास नहीं। तुम गैर समझ बैठे हो मुझे, मैं गैर नहीं हूं, अपना हूं। तुम बोझ समझ बैठे हो मुझे, मैं गांधी जी का सपना हूं, मैं गांधी जी का सपना हूं। तुम कागज मांगने आए हो, मैं तुमको तिरंगा देता हूं। भाजपा वाले आए तो उनको से कहना कि तुम कागज मांगने आए हो, मैं तुमको तिरंगा देता हूं। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो, मेरा रंग निकालो झंडे से। मेरी माँ की दुआ ये झंडा है, मेरे बाप की भी पहचान है ये। तुम्हें सिर्फ तिरंगा लगता है, अरे पूरा हिंदुस्तान है ये, पूरा हिंदुस्तान है ये। असम वालों, आपकी मौजूदगी को सलाम। इस तपती दोपहरी में आप इतनी देर आप मुझे सुनते रहे, उसके लिए शुक्रिया। यकीन जानिए कि कल के बाद प्रचार बंद हो जाएगा। मैं देश के जिस कोने में जाऊंगा मैं ये कहूंगा कि असम में सबसे ज्यादा जोश कहीं देखने को मिला तो वो बोको के लोगों में देखने को मिला, वो यहाँ के लोगों में देखने को मिला। और मैं यहाँ से जाके राहुल जी से और प्रियंका जी से भी कहना चाहूंगा कि आप भले ही चुनाव प्रचार के वक्त यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश रहेगी कि असम में सरकार बन जाए तो एक बार जीत के जश्न में नंदिता दीदी के लिए यहाँ जरूर आइएगा, यहाँ आइएगा और यहाँ की आवाम का शुक्रिया अदा करिएगा, क्योंकि ये आवाम बड़ी शानदार है। ये लहराते हुए पोस्टर, ये लहराते हुए झंडे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि 2 मई को रिजल्ट आएगा और 2 मई भाजपा गई, 2 मई भाजपा गई। एक बार मेरे साथ एक आदमी नारा लगाएगा, मैं कहूंगा 2 मई, आप कहेंगे भाजपा गई। 2 मई, बड़ा इतने से काम नहीं चलेगा, और जोर नारा सुनाई पड़ना चाहिए दिल्ली के हुक्मरानों तक, इतना जोर का नारा लगे। 2 मई, 2 मई, 2 मई, 2 मई। अब एक बार कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। এটা খুব সুরে হাত চাপৰিৰে ইমৰান প্ৰতাপ গিৰি ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাও। খুব জোৰে এটা হাত চাপৰি দিয়ক, তেখেতে সুন্দৰকৈ বক্তৃতা দাঙি ধৰিছে। ধন্যবাদ। এতিয়া আমাৰ মাজত বক্তব্য দাঙি ধৰিব
আমাৰ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া সুযোগ্য পুত্ৰ সন্মানীয় সাংসদ উপদলপতি বিৰোধী দলৰ লোকসভাৰ আৰু তেখেতক ভাষণ ধৰিব ঠিক আদৰণিৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা খুব জোৰেৰে হাত চাপৰি দিব লাগিব। গৌৰৱ গগৈ, গৌৰৱ গগৈ, গৌৰৱ গগৈ। মোৰ মাতটো শুনা পাইছেনে? আজি বৌক অঞ্চলত অনুষ্ঠিত এখন নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত আপোনালোকৰ জনপ্ৰিয় নেত্ৰী বিধায়িকা নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়ানী, উপস্থিত অসমৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ উপদলপতি দলৰ উপসভাপতি মাননীয় ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপস্থিত উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা অহা মাননীয় ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ ইমৰান প্ৰতাপগিৰি ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপস্থিত আমাৰ চবুৱা সমষ্টি প্ৰাৰ্থী অজয় ফুকন ডাঙৰীয়া, অসম কংগ্ৰেছৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ বাবু বৰুৱা ডাঙৰীয়া, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক উদিত ভানু দাস ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপস্থিত NSY যুৱ কংগ্ৰেছ, মহিলা কংগ্ৰেছ, মণ্ডল কংগ্ৰেছ, ব্লক কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়াসকল, পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকল, জিলা পৰিষদৰ সদস্যসকল, ইয়াত উপস্থিত মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ আই মাতৃসকল, বয়োজ্যেষ্ঠসকল, যুৱক বন্ধুসকল, হাফিজ উলেমা চাহাবসকল, শিক্ষক গুৰুসকল, সাংবাদিক বন্ধুসকল, ইয়াত উপস্থিত শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, নমস্কাৰ, আসসালামু আলাইকুম। আজি আপোনালোকৰ এই উপস্থিতি প্ৰমাণ কৰে যে আগন্তুক নিৰ্বাচনত বৌক সমষ্টিত নন্দিতা দাস ডাঙৰীয়ানী বিপুল ভোটৰ পৰা জয়লাভ কৰিব। মই আপোনালোকক আৰু এটা ভাল খবৰ দিবলৈ বিচাৰো, দিব পাৰোনে? এই ভাল খবৰটো হ'ল যে অসমৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনতে অসমৰ খেলা শেষ, মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'বলৈ গৈ আছে। খেলা হৈ গৈছে, চৰকাৰ হবে আৰু মানুহৰ মুখখনৰ পৰা হাঁহি ঘূৰি আছে। মানুহে অৱগত যে মহাজোঁটৰ চৰকাৰ আহিলে আমি নিজৰ ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে আমাৰ নিৰাপত্তা থাকিব, আমাৰ সন্মান থাকিব, আমাৰ মৰ্যাদা থাকিব। মানুহে গম পাইছে যে যেতিয়া মহাজোঁটৰ চৰকাৰ আহিব আমাৰ 5টা গেৰেণ্টি ৰূপায়ণ হ'ব, যি গেৰেণ্টি লৈ আজি তাৰিখত অসমৰ মূল সমস্যাখিনি অলপ সমাধান হ'ব। বহুত আশা কৰিছিল ৰাইজে, বিগত 5টা বছৰত ৰাইজে খুব আশা কৰিছিল, পৰিৱৰ্তনৰ আশা কৰিছিল। কি পৰিৱৰ্তন দেখা পালে বিগত 5টা বছৰত? এটাই পৰিৱৰ্তন দেখা পালে যে ধনী মানুহ আৰু ধনী হৈ গ'ল, দুখীয়া মানুহ আৰু দুখীয়া হৈ গ'ল, ইয়াৰ বাহিৰে পৰিৱৰ্তন নাই। বিজেপি এজেপি ওলাই আহি কয় 38 টকা দিছোতো। হয়, বিজেপি বন্ধুসকল, এজেপি বন্ধুসকল, আপোনালোকে 38 টকা দিছে, কিন্তু আন হাতৰ পৰা ৰন্ধন গেছৰ দাম 900 টকা বঢ়াই আপোনালোকে পইচা লৈছে। আপোনালোকে 38 টকা দিছে, আন হাতৰ পৰা মিঠা তেলৰ দাম 150 টকা বঢ়াই আপোনালোকে পইচা লৈছে। পেট্ৰলৰ ডিজেলৰ দাম 90 টকা বঢ়াই আপোনালোকে পইচা লৈছে। আজি শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ, ঘৰৰ ভিতৰত চিলিণ্ডাৰ আছে, গেছ নাই। হয় নাই নহয় কওকচোন? মই মিছা কথা কৈছো নেকি? আজি ঘৰৰ লাইনৰ বিল 5 বছৰ আগত ক'ৰবাত 100 টকা 150 টকা আছিল, আজি ক'ৰবাত 400 টকা 500 টকা হৈ গৈছে লাইনৰ বিল। যিসকল গাঁৱৰ গৰু ৰাখে
এটা বেগ চাপৰৰ দামতো মূল্য বৃদ্ধি হৈছে যিসকল আত্মসহায়ক গোট আছে তেওঁলোকে কৈছে সূতা দামত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে যিসকল মাছৰ ব্যৱসায় কৰে আজি তেওঁলোকে কৈছে মাছৰ দানাটো আজি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে যিসকল দোকান চলায় তেওঁলোকে কৈছে পেট্ৰলৰ ডিজেল দামৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈ যোৱাৰ পিছত এটা যিমানখিনি মাল বাহিৰত আনিবলৈ হৈছে প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰত মূল্য বৃদ্ধি এয়া হ'ল পৰিৱৰ্তন এয়া আনন্দ আনিলে জাতীয় নায়ক মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া চবে ভাবিছিল তেওঁ সকলোৰে বাবে আনন্দ আনিব কিন্তু কাৰ বাবে আনন্দ আনিলে জাতীয় নায়কজনে আনন্দ আনিলে আদানী লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ এয়াৰপৰ্ট বিক্ৰী কৰি দিলে আদানীক অসমৰ তেল বিল বিক্ৰী কৰিলে আম্বানীক অসমৰ বাগান বিক্ৰী কৰিলে গুজৰাটী কোম্পানী তো দুখীয়া মানুহৰ আনন্দৰ কাৰণে কাম কৰা নাই জাতীয় নায়কজনে ধনী মানুহৰ আনন্দৰ কাৰণে কাম কৰিছে ক'ত গ'ল জাতীয় নায়কজনে কি কৈছিল 6 মাহৰ ভিতৰত জনজাতিকৰণ কৰিব গুজৰাট বংশী 6 মাহৰ ভিতৰত জনজাতিকৰণ হ'ল আজি 5 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল নামতে উন্নয়ন পৰিষদ গঠন কৰিলে আৰু সেইটো পিছত গৈ পাহৰি গ'ল কৈছিল কি তেওঁ জাতি মাটি ভেটি সুৰক্ষিত ৰাখিব কি হ'ল